स्टेज पर आવીને પોતાની વાત રજૂ કરે। હાલો કરો ચાલો આનો અલા ભારે કે ક્યાં આમાં સીટ છે એ મને દેખાતો હાલો હાલો આવી ગયું। જય ભીમ। 14 એપ્રિલ નજીક આવી રહી છે તો આપણે તાકાતથી જય ભીમ કરવું જોઈએ। બપોરેનું જમવાનું પતી ગયું, અત્યારે સાંજે ભૂખ્યા થયા હશો આપણને ખબર છે, પણ તાકાતથી બોલો જય ભીમ જય ભીમ જય ભીમ। આજે પાટણની ઐતિહાસિક ભૂમિ પર ભારત મુક્તિ મોરચા, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा द्वारा एक पाटण जिला स्तरीय जो कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे एमां पधारेला आदरणीय मेहमानों हूँ स्वागत करूँ छूं। आ कार्यक्रम एक जन जागृति ना आशय थी राखवामां आवेल छे। काले 11 तारीख गई ए ज्योतिबा फूले की जयंती थी। आ देश की अंदर सौ प्रथम शिक्षण की जो क्रांति लाया होय, महिलाओं ने जो भणवानो अधिकार सौ प्रथम आप्यो होय तो ये हता ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र पुना नगरी में माळी समुदाय मांथी आवेल ज्योतिबा सौ प्रथम महिला शिक्षण की जोत जगावी અને એમની પત્નીને શિક્ષિત કરી અને મહિલા શિક્ષણની જોત જગાવી। એટલા દેશની અંદર શિક્ષણની દેવી સાવિત્રીબાઈ ફૂલે છે, પણ આપણે એ કહેતા નથી, એ આપણી ભૂલ છે। તો પાટણ જિલ્લાની અંદર જે કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એ અલગ અલગ મહાપુરુષોની જયંતિ આવી રહી છે આ એપ્રિલ મહિનામાં, અને એક એપ્રિલ મહિનામાં એ પણ एक महापुरुष की जयंती गई जेनु नाम हतु सम्राट अशोक, जेने आ देश की अंदर धमनु भारत की तमाम सरहदों पर जेटला पण देशों हता ए तमाम देशों ने अंदर जो भगवान बुद्धना धमने सौ प्रथम आज थी 2000 वर्ष पहला आगळ लई गया होय तो सम्राट अशोक एनी पण अष्टमी आ चैतर मास ની અંદર અશોક અષ્ટમી આવે છે તો એની પણ જન્મ જયંતિ અને ત્રીજી ડોક્ટર બોધિસત્વ ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરની પણ જન્મ જયંતિ આવી રહી છે। આ કાર્યક્રમ ઈવીએમ હટાવો દેશ બચાવો બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી થવી જોઈએ એ મુદ્દો છે। ઓબીસી વર્ગની જાતિ આધારિત જનગણના થવી જોઈએ એ મુદ્દો છે, અને यूजीसी न लागू करवू ए पण एक मुद्दो छे। आ देशनी अंदर आपणे जोई रह्या छीए के मोटा मोटू चुनाव में जो धांधली थती होय तो ये ईवीएम थी थाय छे। जो आ देश में बेलेट पेपर थी चूंटणी थाय तो दूधनु दूध अने पाणीनु पाणी थई जाय, पण आपणे जोई रह्या छीए के सत्ता पक्षना लोको ईच्छी रह्या छे के ईवीएम थी चूंटणी थाय, અને એ લોકો કહે છે કે ઈવીએમ એક પારદર્શક છે, પણ આપણા દેશમાં એ કમનસીબી છે કે ઇલેક્શન કમિશન જે પારદર્શક વહીવટ હોવો જોઈએ એ નથી, અને એના કારણે આ દેશમાં એક જ પાર્ટીના લોકો ચૂંટાઈને આવે છે। એટલે દુનિયામાં જેને ઈવીએમ બનાવ્યું એ દેશ પણ ઈવીએમથી ચૂંટણી થતી નથી। तो आपणे आज महापुरुषों जन्म जयंती निमित्ते आज कार्यक्रमों राखी रह्या छे एनी अंदर बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ना आपणे अनेक नाराओ बोलता होईए छीए कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब ना जेटला गुणगान गाई जेटला पण एना विषे बोलीए
એ આપણા માટે બહુ ઓછું છે. કારણ કે આ દેશની અંદર બે વિચારધારાઓનો સંઘર્ષ વિશ્વથી ચાલી રહ્યો છે. એટલા માટે બાબા સાહેબ ડોક્ટર આંબેડકરે આ સંસારને ત્રિસૂત્ર કાર્યક્રમ આપ્યો: શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો. તો બાબા સાહેબના આ ત્રણ વાક્યોને જો તમારે સમજવા હોય તો બાબા સાહેબના ત્રણ પુસ્તકો તમારે વસાવવા જોઈએ અને વાંચવા જોઈએ, તો તમને એ ત્રણ વસ્તુના મુદ્દાની ખબર પડે. પહેલું, શિક્ષિત બનો. તો કોને કીધું તું? વિદેશની શિષ્યવૃત્તિ આપી અને જે વિદેશ ભણવા ગયા હતા, બાબા સાહેબની મહેનતના કારણે એ લોકો જ્યારે પાછા આવે છે અને એમના સન્માન વખતે બાબા સાહેબ કહે છે કે પડે લીગે લોકોને મુझे ધોખા દિયા. તો ભણેલાને શિક્ષિત કરવાનું કીધું હતું, અભણેને નહીં. તો શિક્ષિત બનવું એટલે શું? તો એના માટે બાબા સાહેબે 6 નંબરનો એક ગ્રંથ લખ્યો છે. એ ગ્રંથને તમારે વાંચવો જોઈએ, જેનું નામ છે રીડ ઇન હિન્દુઝમ, હિન્દુ ધર્મનું તત્વજ્ઞાન. આ પુસ્તક તમે વાંચો તો બાબા સાહેબ શું શિક્ષણ લેવા માંગતા હતા એનો તમને ખ્યાલ આવશે. બીજું, તમારે સંગઠિત થવું હોય તો બાબા સાહેબનો 7 નંબરનો ગ્રંથ વાંચવો જોઈએ, જેનું નામ છે પ્રાચીન ભારતમાં ક્રાંતિ અને પ્રતિક્રાંતિ. આ દેશની અંદર વર્ષોથી સમણ સંસ્કૃતિ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો જે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે, એની અંદર બાબા સાહેબ બતાવે છે કે આ દેશનો ઇતિહાસ એટલે સમણ સંસ્કૃતિ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો સંઘર્ષ. આ સિવાય આ દેશનો કોઈ ઇતિહાસ નથી. પણ આપણે ઇતિહાસને જાણતા નથી એટલે આપણે એવું સમજીએ છીએ કે મહાભારત આ દેશનો એક ઇતિહાસ છે. પણ આ વાત તદ્દન જૂઠી છે. આ વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે ભાઈ સંગઠિત શા માટે બનવું. અને જો તમારે સંઘર્ષ કરવો હોય તો બાબા સાહેબનો 9 નંબરનો ગ્રંથ વાંચવો પડશે. અને એ ગ્રંથનું નામ છે અસ્પૃશ્યની ઉત્પત્તિ. સંસારની અંદર 5 પ્રકારની જે અસ્પૃશ્યતા હતી, એ અસ્પૃશ્યતા ક્યાંથી કેવી રીતે આવી અને એને કેવી રીતે બાબા સાહેબે નાબૂદ કરી. અને એટલે બાબા સાહેબ કહેતા હતા કે આ દેશની અંદર અનેક સંતો મંતો, દેવી દેવતા, પીર પેગંબર જન્મ લીધા, ચમત્કાર કર્યા, પણ કોઈ અસ્પૃશ્યનું ભલું ના કર્યું. અસ્પૃશ્યના ભલા માટે બાબા સાહેબ ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને ગોળમેજી પરિષદમાં જઈ અને તમને હકો માટે એમની પ્રજ્ઞાના કારણે તમને જે હકો અને અધિકારો જે મળ્યા છે એ બાબા સાહેબની પ્રજ્ઞાના કારણે છે. साथियों, नमाज अदा हो रही है हमारे मुस्लिम भाइयों के मान रखते हुए इस कार्यक्रम को हम नमाज जब तक अदा हो रही है तब ये स्थगित करते हैं. પૂરું થાય પછી કરીએ. પૂરું થાય પછી કરીએ. હાજર આપીએ એમાં શું વાંધો? હાજર આપીએ એમાં શું વાંધો? શું કે પૂરું એટલે સંઘર્ષ કયો કરવાનું કીધું છે એ તમે 9 નંબરનો ગ્રંથ વાંચો તો તમને ખબર પડે. પણ કમનસીબી આ દેશની અંદર આપણી છે કે આપણે વાંચતા નથી. આપણે વાંચતા નથી. વાંચ્યા પછી આપણે ચિંતન કરવું જોઈએ અને ચિંતન કર્યા પછી મનન કરવું જોઈએ, તો આપણને ખ્યાલ આવે. બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરને અનેક એમની આગળ વિશેષણો લગાવવામાં આવે છે. બાબા સાહેબ ડોક્ટર આંબેડકર આ દેશનું સંવિધાન બનાવ્યું છે. એટલે બાબા સાહેબ ફક્ત દલિતોના નેતા નથી,
બાબા સાહેબ આ સંપૂર્ણ ભારત વર્ષના નેતા છે. બાબા સાહેબે સંવિધાન દ્વારા કઈ વાંધો એ તો આવશે પૂરું કરશે એવું કર તો પૂરું કરવું અહીંયા. ચાલો તો બીજા કોઈ વક્તાને સમય આપવામાં આવે. બરાબર. જય ભીમ. धन्यवाद सर जी, और दिल से माफी चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और समय को ध्यान में रखते ही हुए इस प्रोग्राम की गतिविधि को आगे ले जाना है. नेक्स्ट वक्ता के तौर पर हमारे जे मकवाना साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी गुजरात राज्य कोषाध्यक्ष ने હું નમ્ર નિવેદન કરીશ કે મંચ પર આવીને પોતાની વાત રજૂ કરે. ધન્યવાદ. जय भीम, नमो बुद्धाय। आज रोज पाटन की धरती पे प्रोग्राम लगाया हुआ है। इसमें जो हमारा मुद्दा है, जो देश में चल रही है परिस्थितियां के अनुसंधान लगाया हुआ है, लोक जागृति का ये प्रोग्राम है। हमारे देश में चल रहे शासक प्रशासक के जो हम संदेश देना चाहते हैं वो इसी प्रोग्राम से हम देना चाहते हैं। देश में चल रहे हमारा मुद्दा है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, અમારે ફક્ત બેલેટ પેપરથી જ ચૂંટણી જોઈએ, એ અમારું એક લક્ષ્ય है। ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना करना और ओबीसी को अपना हक अधिकार देने के समर्थन में ये हमने प्रोग्राम ये पाटन की धरती पर लगाया हुआ है। साथियों, ओबीसी पश्चात वर्ग ने कायम माटे गुलामी बनाए रखने के लिए ये शासक प्रशासक हर दिन नुकसान कर रहे हैं। इसके आगे में हम ये प्रोग्राम लगाया हुआ है, उसको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम लगाए हुए हैं। दूसरा हमारा ये है कि यूजीसी का हम समर्थन कर रहे हैं। देश में बेरोजगार युवा धन खत्म हो रहा है, वो एक षड्यंत्र है। तो हम शासन प्रशासक के आगे में ये प्रोग्राम लगाए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे यहाँ पधारे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा और संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा के वामन मेश्राम सर जी ये पाटन की धरा पर आए हुए हैं और यहाँ पधारे हुए हर एक व्यक्ति को साहब को सुनना है। मेरे पीछे भी ये सारे ये वक्ता खड़े हुए हैं, वो अपना भी वक्तव्य देंगे। हमारा मकसद यह है कि लोक जागृति करना, लोगों में जागृति लाना और देश में जो चल रही ये षड्यंत्रकारी जो रोज बरोज की जो घटनाएं घट रही है उसको खत्म करने के लिए ये श्रेष्ठ हम ऐलान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये देश में चल रही गैरबंधारीय और लोगों पर थोपी हुई गुलामी को जल्द से जल्द खत्म करे, ऐसी दिशा में हम वर्क कर रहे हैं। तो सभी साथियों को मेरा आह्वान है कि हमारे साथ चलो और एज मिशन में भागीदार बनो। बस ऐसा मैं बोलता हूँ। मेरे पीछे भी कई वक्ता को समय देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद जे मकवाणा साहेब, बहुजन मुक्ति पार्टी गुजरात राज्य कोषाध्यक्ष। અહીંયા પધારેલ માનનીય રવિન્દ્રસિંહ વિદાવત સાહેબ, રાષ્ટ્રીય પ્રભારી ક્ષત્રિય મૂળ નિવાસી મહાસંઘ સાહેબને હું નમ્ર નિવેદન કરીશ કે મંચ પર આવીને સમય મર્યાદામાં પોતાની વાત રજૂ કરે. ધન્યવાદ. धन्यवाद। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा द्वारा आयोजित दमराजा, ये जो हमारे यहाँ जिन्होंने ये शहर बसाया था पाटन, वो सारे बुद्धिस्ट थे। ये ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जो ये सिद्धराज सिंह की यहाँ सामने प्रतिमा लगी है, उन्होंने
हिंदू धर्म से जैन धर्म कबूल कर लिया था। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जिनके पूर्वज बुद्धिस्ट थे वो हिंदू कब से हो गए। बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया आपने, बाबा साहब को नमन, हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों को नमन, और सभी मूल निवासी भाइयों बहनों, जय मूल निवासी, जय छात्रम, और हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अतिथि सभी को जय मूल निवासी, धन्यवाद। साथियों, ये जो जाति जनगणना का मामला है, इसमें आपने लिखा भी है कि जाति जनगणना न करवाना गुलाम बनाने की साजिश है और दुश्मन नहीं करवा रहा है। और दूसरा जो ये हिंदू वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं सोचा क्लियर कर ही दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्षत्रियों को हिंदू समझते हैं। क्षत्रिय हिंदू नहीं है, क्षत्रिय स्वर्ण में नहीं है, और सामान्य कैटेगरी क्षत्रिय समाज के साथ धोखा है। क्षत्रिय जाति भी नहीं है, ये मैं आपको एकदम, क्योंकि आप फिल्में देखते हैं, मतलब हजारों फिल्में बनी होगी जिसमें ठाकुर और सामान बदनाम किया गया, जैसे हर गांव में वो बलात्कार, लूटकार, इसके बाद दूसरा काम ही नहीं करते हैं। और भारत के हर सिनेमा घर, हर शहर में दिखाई गई है। तो जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, वो उनका धर्म हमारा धर्म एक हो सकता है। मैं महाराजा जयचंद का वंशज हूँ, मेरे पूर्वजों को गाली देने वालों का मेरा धर्म एक हो सकता है। परशुराम के नाम पे जो क्षत्रियों को अपमानित कर रहे हैं, 21 बार भेद कर दिया, 22 बार की तैयारी चल रही है, तो उनका धर्म हमारा धर्म एक थोड़ी हो सकता है। हो सकता है जिन्होंने काल्पनिक ग्रंथ लिखा, मुद्रा राक्षस, चाणक्य काल्पनिक कैरेक्टर खड़ा किया गया, नंदम अंतम क्षत्रिय अंतम, तो क्या वो क्षत्रियों के मित्र हो सकते हैं? हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, तो क्षत्रियों का धर्म थोड़ी हो सकता है। और साथियों, आपने मनुस्मृति पढ़ी है, ब्राह्मण धर्म वो है जो मनुस्मृति में चलता है, उसमें महिलाओं को पाप योनि कहा गया है। और हमारे यहाँ पाटन शहर है, तो यहाँ जो नायिका देवी, चावड़ों के बाद जो बुद्धिस्ट थे, जितने भी बाहर से विदेशी यात्री आए थे, एनसांग, फायाम, सिंह, उन्होंने लिखा भी है भीनमाल भी आपके पाटन शहर के बारे में भी, कि राजा बुद्धिस्ट है, प्रजा बुद्धिस्ट है। ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। जब सब बुद्धिस्ट थे तो हिंदू वो कैसे हो गए, ये चिंतन का विषय। और जो राजा का राज तिलक होता था, अभी आप गुजरात में भी जो कच्छ है, कच्छ जिला है, वहां के जो राजा है, उनका राज तिलक ज्यादातर लोगों को पता होगा, मातंग करते हैं। मातंग किस कम्युनिटी में आते हैं? शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण से वो राज तिलक नहीं कराते। और मनुस्मृति क्या कहते हैं? राज तिलक कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। अगर क्षत्रिय हिंदू होते तो राज तिलक ब्राह्मण से करवाते। उदयपुर में जो राजा है, महाराणा प्रताप से लेके, महाराणा प्रताप को लोग हिंदू बता रहे हैं, उनके सेनापति कौन? मुसलमान थे, उनके चित्रकार मुसलमान थे। महाराणा प्रताप ने खुद मस्जिद बनवाई है वहां उदयपुर, आप जाके देखिएगा। जो मस्जिद बना सकता है वो हिंदू होगा क्या? मनुस्मृति में क्या लिखा गया? SC ST जो भी OBC है वो युद्ध नहीं लड़ेगा। लड़ने का अधिकार है क्या सर उसको? लेकिन महाराणा प्रताप की सेना में आप जितने भी राजस्थान के राजा महाराजा, उनकी सेना में SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग थे। तो जब सब लड़ने पेशवाओं को थे, उसमें लड़ने का अधिकार नहीं था। ये जो मनुस्मृति क्या कहती है? जी साथियों, मेश्राम साहब आ चुके हैं। पाटन की ऐतिहासिक धरा पर मेश्राम साहब आ चुके हैं। साथियों, अरे मेश्राम साहब, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेश्राम साहब, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, पाटन की ऐतिहासिक धरा पर माननीय वामन मेश्राम साहब आ चुके हैं और मंच पर विराजमान हो चुके हैं। साथियों, यहाँ आए हुए सभी मूल निवासी योद्धाओं का
मैं स्मित पाटकर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा पाटन जिला अध्यक्ष हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मेश्राम साहब भारत के वो लीडर है जिन्होंने पूरे शोषित वंचित पीड़ितों को अपना हक दिलाया और हक दिलाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 50 सालों से ये कारवा मेश्राम साहब चला रहे हैं। साथियों, कार्यक्रम को कंटिन्यूसली करते हुए मैं माननीय रविंद्र सिंह दावत साहब को माइक स्थापित करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, जो मैं कह रहा था क्षत्रिय हिंदू नहीं है, क्षत्रिय सामान्य कैटेगरी क्षत्रिय समाज के अंदर धोखा है, स्वर्ण बनाए रखना क्षत्रिय समाज के हक अधिकारों का हनन है। तो साथियों, मनुस्मृति में क्या है कि जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि वो जो हमारे दुश्मन है जिन्होंने फिल्मों के माध्यम से क्षत्रियों को बदनाम किया, धर्म ग्रंथों के माध्यम से बदनाम किया, मीडिया के माध्यम से बदनाम किया, तो वो हमारे बारे में सही डेफिनेशन थोड़ी देंगे। दूसरा, जो क्षत्रिय है वो जाति भी नहीं है, अलग अलग कुल है, जैसे राठौड़ अलग है, चौहान अलग है, उनसे मिलकर लोग उनको क्षत्रिय कहने लगते। तो जैसे हमारे राज तिलक का मामला है, तो क्षत्रियों को अगर हम मनुस्मृति की बात करेंगे, मनुस्मृति में हिसाब से तो क्षत्रिय का राज तिलक ब्राह्मण करना चाहिए, लेकिन यहाँ जैसे मैंने कच्छ का एग्जाम्पल दिया कि राज तिलक जो मातंग है शेड्यूल कास्ट के, वो लोग आज तक करते आ रहे हैं। ये तो पुरानी परंपरा नहीं है, अभी की आपको अभी की आप पता कर लीजिए। उदयपुर में जैसे क्षत्रिय करते हैं, जयपुर में एसटी के लोग करते हैं, कई राजस्थान में ओबीसी के लोग करते हैं। तो अगर मनुस्मृति को मानने वाले होते, हिंदू होते, तो उनका जो राज तिलक है ब्राह्मण करते। अभी जैसे जयचंद जी के गुरु थे तो बुद्धिस्ट बनते थे, और जिनके गुरु बुद्धिस्ट बनते हैं वो हिंदू थोड़ी हो सकते हैं। अभी हमारे साथी ने चित्रा जय सिंह बोले पहले हिंदू थे फिर वो जैन बन गए। अरे तो जिनके पूर्वज हिंदू वो बुद्धिस्ट थे तो वो फिर हिंदू कैसे बन गए? हिंदू हो ही नहीं सकते। दूसरा, जैसे साथियों अभी अपने गुरु मेरा जी के गुरु रैदास की बात करते हैं, हमारे विदेश मंत्री रहे लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह जी, उनके भी जो गुरु थे दादी जी के, वो दारू मेघवाल थे, ये आदला साहब बैठे हैं, इनके छत्र गए हैं। तो मनुस्मृति के हिसाब से तो क्षत्रिय गुरु शेड्यूल कास्ट के हो नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रिय है जो छात्र में वो श्रवण संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और यही हमारे जो इतिहास है, अभी के करंट के एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप का, जैसे मैंने बताया कि भी जो मनुस्मृति में लड़ने का अधिकार नहीं है बाकी लोगों को, लेकिन उनके साथ सभी लोग, उन्होंने तो मस्जिदें भी बनाई, उनके सेनापति चित्रकार बहुत लोग मुसलमान भी थे। और जितने भी राजा महाराजा हैं राजस्थान में या कहीं भी आप देखेंगे, उन्होंने पर्टिकुलर ऐसा कहीं नहीं लिखा मैं इस धर्म को मानता हूँ, उन्होंने ये भी नहीं लिखा कहीं मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। उनके धर्म में जो भी राजा थे, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार सारे मिलेंगे आपको। तो एक तो हिंदू, आज के हिंदू आप देख रहे हो, अभी शंकराचार्य ने ये जो कहते हैं क्षत्रियों को, तो एक भी अभी तो इनका शासन चल रहा है, 80 साल में किसी एक क्षत्रिय को राजा बनाते हुए मैंने देखा नहीं है। अब ये मेश्राम साहब बैठे, हो सकता है ये सुन के लोग ये शुरू करते हैं सिस्टम। तो साथियों, दूसरा है जो महिलाओं को देवदासी बनाना उनका, और हमारे जैसे ये पाटन शहर है, जो यहाँ की रानी थी चालुक्य वंश की नायिका देवी, उन्होंने मोहम्मद गजनवी को हराया था, तो नेतृत्व करते थे। यहाँ जो रानी की बाव है पाटन में, तो किसी महिला ने बनाई है ना, लेकिन मनुस्मृति के हिसाब से तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं थे, वो बना थोड़ी सकते हैं। तो ये हमारे श्रमण संस्कृति के लोग थे, और अभी हमारे लोग भी ब्रह्म हैं, तो इसलिए। दूसरा, अभी जैसे आप देखेंगे कि बिल्किस बानो का रेप केस हुआ, तो जो बलात्कार करने वालों को छोड़ दी जाती है, ये हमारे श्रमण संस्कृति में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो स्त्रियों के साथ करें उसे तो फांसी होना चाहिए। और आपने अभी देखा होगा पन्ना के अंदर एग्जाम्पल, एक अपने जैसे महारानी थी पन्ना के, उनके पूर्वजों ने जो मंदिर बनाया था उसमें जैसे अपने बोरी उठा के फेंकते हैं ना, वैसे महारानी को उठा के मंदिर से फेंक दिया। तो उनका धर्म और हमारा धर्म एक थोड़ी हो सकता है। अभी जो अपने शिरोई महाराजा थे, बाबा साहब से उनके अच्छे रिलेशन थे,
उन्हें तो पैलेस गिफ्ट किया। अगर वो हिंदू होते तो उनको पैलेस गिफ्ट नहीं करते। वो समता को मानने वाले, श्रमण संस्कृति को उनको ध्यान था अपने पूर्वजों का, इसीलिए किया। ये जो साथियों हमारी जो प्रेरणा वो खत्म करने के लिए महापुरुषों का चरित्र हनन करते हैं। जैसे मान सिंह आमेर को गद्दार बताया गया, महाराज जयचंद को बताया गया, तो उनका और हमारा धर्म एक हो नहीं सकता। अभी जैसे मान सिंह के रिलेशन वो बताते हैं, मुगलों से उनके संबंध थे। आप दिल्ली एक बार जाके देखिए, दिल्ली का जो बाजार है उसके अंदर एक भी दुकान मुसलमान की भी नहीं मिलेगी आपको दूसरी, और मंदिर आज तक वो तो वही है। और हमारे यहाँ मंदिर तोड़ने के लिए वो आ जाते थे। आज भी रिश्तेदारी किन की है? मुगलों के साथ। जो लोग हमारे लोगों को बदनाम करते हैं ताकि गलत में भी बने रहे, हमारे लोग एक नहीं हो पाए, क्योंकि जब हमारे लोग एक थे तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ का शासन व्यवस्था उनके हाथ में थी। हर घर में सोने चांदी के बर्तन होते थे। इसका मतलब हमारे पूर्वज जो थे सारे बिजनेसमैन भी थे, कि वर्ल्ड का 2/3 रेवेन्यू भारत जनरेट उस समय करता था। तो हमारे लोग बिजनेसमैन थे, और आज हमारे लोग मतलब नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर हमें राजा बनना है तो वापस ये गलतफहमियां खत्म करके और हमें कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है, तो वहां जैसे समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। तो हमारे लोग देखते हैं यार ये समाजवादी पार्टी ठीक है, कोई देखता है बीएसपी ठीक है, कोई कांग्रेस ठीक है, लेकिन उनकी विचारधारा को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि साफ कहते हैं ना कि आंखों से दिखता है वो तो देखना चाहिए। अब फुले जी की जयंती हम कल मना रहे हैं, तो उन्होंने पहला यही कहा दोस्तों दुश्मन को पहचानो। फुले जी ने तो आज से 150-200 साल पहले लेटर लिखा कि अगर परशुराम जिंदा है 15 दिन में मेरे सामने उपस्थित हो, ठीक है। और हमारे जो अभी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, वो उनकी मूर्तियां लगा रही है। अभी कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं, जो बीएसपी थे बीएमपी क्यों बढ़ाई? तो साहब ने इसीलिए बढ़ाई कि वो हमें गुलाम बनाएंगे। और विचारधारा अगर हमारे इतने सम्राट अशोक से लेके बाबा साहब से लेके मूल निवासी बहुत महापुरुष हुए हैं, उनकी मूर्तियां लगाते जो परशुराम की लगा रहे हैं, तो वो कल मनुस्मृति लागू करेंगे। वो हमारे बच्चों के साथ अधिकार कैसे दे सकते हैं? अभी ईवीएम का जो मुद्दा है आपको पता है, उससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आवाज कौन उठा रहे हैं? तो हमारे लोग जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं या फिर तन मन धन से सहयोग है, तो उस समय आप विचारधारा को जरूर देखें। क्योंकि साहब तो 365 दिन आज 50 साल से लगे हुए, और सही आदमी का आप साथ नहीं दोगे तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। क्योंकि अगर इतिहास लिखना है, हम सपना देखते हैं जापान का, हमारे बच्चे भी जापान की तरह यहाँ वो बुलेट ट्रेन हो और फैसिलिटी हो, हम पढ़े। आज पूरे वर्ल्ड में जैसे सफाई की मशीनें, हमारे यहाँ एक जाति बना रखी है कि वो सफाई करने का ही काम करेगी, वो उसको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो उनके बच्चे भी 53 लाख बजट है भारत सरकार का, उसमें हमारा हिस्सेदारी कितनी है उसके बारे में साफ चिंता करते हैं। तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तो आपके भी है ना। क्योंकि बिना देखो साथियों फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में वही मिलता है जो दुश्मन आपको बच जाता है, किसको देना इनको दे दो। तो फ्री में कुछ मिलेगा नहीं। शासक बनना तो त्याग का भाव होना चाहिए। तो आपको श्रम, समय, पैसा, हुनर, बुद्धि उसका इस्तेमाल करते हुए सेवा करना होगा, तभी हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। जय छात्रम, जय मुनि हसी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रविंद्र सिंह जावल साहेब, राष्ट्रीय प्रभारी क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ फ्रॉम राजस्थान। माननीय तारक भाई ठाकुर, कन्वीनर गुजरात ओबीसी अनामत वर्गीकरण समिति साहेब ने હું નમ્ર નિવેદન કરીશ, સ્ટેજ પર આવીને સમય મર્યાદામાં પોતાની વાત રજૂ કરે। ધન્યવાદ। मंच पर उपस्थित सब सच्चे समाज प्रेमी और बहुजन समाज से आए हुए सब योद्धा, इस जो कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं उसमें जिन जिन संगठन ने, जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, समय का, आर्थिक योगदान, उस सबको, और जितने भी बहुजन समाज से आए हुए माताएं, बहनें, मेरी
मतलब जितने भी भाई हैं, जितने भी सच्चे समाज प्रेमी है, आप सबको मेरा वंदन और सबको जय भीम। तो आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय है जो जाति जनगणना की जो अभी बात हो रही है। तो जाति जनगणना क्यों जरूरी है, हम सबको बताए कि उससे जो सच्चे आंकड़े वो बाहर आएंगे कि किस जाति में आज की तारीख में उनकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, उनका सरकारी नौकरी हो, शिक्षण संस्थाएं हो, उनमें उसका प्रतिनिधित्व क्या है, वो कितने वंचित रह चुके और उनके लिए क्या करना चाहिए। तभी तो सरकार पॉलिसी बना पाएगी, तभी तो सुधार कर पाएगी। पर सबसे आप मानिए कि सबसे मतलब बहुत दुख होता है ये जान के कि हमारे देश को आजाद हुए अभी 78 इयर्स हो गए, 78 साल हो गए, पर अभी तक भारत में कोई भी जाति गणना नहीं हो पाई है। आखिरी जाति गणना अंग्रेजों ने की थी, वो भी 1931 में की थी। और इसकी वजह से आज की तारीख में हमारे पास सच्चा कोई आंकड़ा ही नहीं है कि ओबीसी समाज की संख्या कितनी है और ओबीसी समाज में भी जो ज्ञाति है उनकी कितनी संख्या है, उनके कितने वंचित है, उनको अनामत का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी परिस्थिति क्यों पीछे है। और इसीलिए अभी बहुत दबाव हुआ, बहुत लोगों जैसे ओबीसी समाज हो, एससी एसटी सब बहुजन भाइयों ने सरकार पर बहुत प्रेशर किया। उसकी वजह से सरकार मान भी गई कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। पर मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूँ और अभी मेरे एक ओबीसी समाज में आते हुए एक युवा की तरफ में एक चीज कहना चाहता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ी शंका है कि शायद सरकार जातिगत जनगणना करे ही नहीं, या तो करे तो सच्चे आंकड़े बाहर आए ही नहीं। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि 2011 में, इससे पहले भी पार्लियामेंट में सब पार्टी ने बोला था कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और उसके बाद इतनी खराब तौर पर जातिगत जनगणना की कि उसके डेटा आज 15 साल बाद भी बाहर नहीं आ पाए। और आज भी हमें नहीं पता है कि वो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम पर जो छलावा किया गया था उसमें किया क्या गया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उसमें क्या आंकड़े आए, किस जाति का क्या प्रतिनिधित्व था। और इस साल भी जो 2026 में जातिगत वस्ती मतलब जनगणना होने वाली है, जो कास्ट सेंसस होने वाला है, उसमें भी यही ना हो, इसके लिए हमें आज से ही उसकी तैयारी करनी होगी, सरकार पर प्रेशर बनाना होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वरना जो 2011 में हुआ था वो 2026 में फिर से हो सकता है। मैं इसका क्यों कह रहा हूँ, अभी जब ये कास्ट सेंसस का जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो ओबीसी का कॉलम होना चाहिए था वो नहीं है। अभी कास्ट सेंसस शुरू हो चुका है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, पर कास्ट सेंसस शुरू हो चुका है और हाउस लिस्टिंग उसमें चालू हो चुकी है, उसमें भी ओबीसी का कॉलम नहीं है। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा शक पैदा हो रहा है कि शायद सरकार ओबीसी का कास्ट सेंसस में उल्लेख ही ना करे, वो डेटा कलेक्ट ही ना करे। और उसके बाद जो एक और चीज जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे वो ये है कि अभी भारत की सरकार ने ये 16 से 18 तारीख के बीच पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बुलाया है और इस स्पेशल सेशन में उन्होंने ये बोला है कि जो नारी शक्ति अधिनियम जिसमें 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया जाएगा विधानसभा में और पार्लियामेंट में, वो हम पास करेंगे। वो बहुत बड़ी चीज है, वो अच्छी चीजें होनी चाहिए। पर सबसे ज्यादा जो चीज जिसके कारण हमें अभी से चेत जाना चाहिए वो ये है कि सरकार ने ये बोला है कि ये जो 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा वो 2011 में जो सेंसस के आंकड़े थे उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो मेरा प्रश्न एक ही है आपसे और सरकार से कि जब 2026 में नया सेंसस होने वाले है, नए लेटेस्ट आंकड़े आने वाले हैं, हर एक ज्ञाति के हिसाब से जो आंकड़े मिलने वाले हैं, तो सरकार 2011 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से महिलाओं को 33% जो रिजर्वेशन है वो क्यों देना चाहती है? जब आपके पास नए आंकड़े आ सकते हैं 6 महीने में, तो आप 15 साल पुराने आंकड़े के हिसाब से क्यों महिला आरक्षण देना चाहते हो? तो इसका ये कारण ये भी हो सकता है कि सरकार महिला आरक्षण तो दे दे 2011 के हिसाब से, पर जो आने वाला कास्ट सेंसस में है उसमें जो भी उनके हिसाब से अनियमितता हो, गैररीतियां हो, उसकी वजह से शायद ओबीसी के सच्चे आंकड़े बाहर आए ही नहीं।
और ओबीसी को कास्ट सेंसस में जो बोलने की बात की गई थी वो शायद हो ही नहीं। और इसीलिए हमें आज से ही सरकार को यह प्रश्न पूछना होगा कि अगर आपकी मंशा कास्ट सेंसस करने की है, आपकी मंशा ओबीसी के सच्चे आंकड़े लोगों के समक्ष रखने की है, तो आप क्यों महिला आरक्षण 2011 के हिसाब से कर रहे हो, ना कि 2026 में जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से। और ये मैं चीज इसलिए बोल रहा हूं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हम यूजीसी बिल की बात करते हैं, यूजीसी बिल में जो प्रावधान रखा गया था उससे अन्याय होगा, हुआ नहीं था, आशंका थी कि होगा। और उसमें भी जो सवर्ण समाज था, जिनकी 20% 25% भी कुल जनसंख्या नहीं थी, उसने ऐसा जन आंदोलन किया कि पूरा भारत बंद कर दिया, पूरे भारत में जन आंदोलन किया और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी और यूजीसी बिल पास नहीं हो पाया। तो मैं ये पूछना पाता हूं कि ये सवर्ण समाज में जो ज्ञातियां है वो एक ज्ञाति नहीं है, सवर्ण समाज एक ज्ञाति नहीं है, उसमें बहुत सारी ज्ञातियां है, वो उनके रीति रिवाज अलग है, उनके वो रहना अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनके साथ कुछ इतना संबंध नहीं होता, पर जब उसके साथ अन्याय की बात होती है तो वो सब साथ में आ जाता है, वो एक दिन में एक रात में साथ में आ जाते हैं, पूरा भारत बंद कर देते हैं, वो बिल वापस ले देते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुजन, जो हम बोलते बहुजन, ओबीसी, एसटी, एसटी, माइनॉरिटी, जो बहुजन हम बोलते हैं कि हम 80% है, हम 85% है, पर जब हमारे साथ अन्याय होता है, जब हमारे साथ अत्याचार होता है, जब हमारा शोषण होता है, जब हमको हमारा हक नहीं मिलता है, हमारा न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, तो हक कहाँ होते हैं? सिर्फ 85% बोलने से हम 80% ऐसे कुछ नहीं होता है। जो संख्या की बात करते हैं उसके 10% भी हम जमा कर पाते। ये बोलना चाहता हूं, हमें ये समझना होगा, सिर्फ ये बोलने से कि हम 80% है तो हमारा हक हमको घर के आके दे, तो ऐसा नहीं होता है। 80% होने से सरकार आपको घर पे आके आपका हक नहीं देगी, आप में ताकत होनी चाहिए कि आपके हक के बारे में बोल सके। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं कि हम बहुजन 80% है, 85% है, तो हमको क्यों हमारा लाभ नहीं मिलता है, हमारी योजना हो या हमारे साथ अन्याय क्यों होता है। तो मैं आपसे और खुद से पूछ रहा हूं, क्या हम 80% 85% है तो हम कभी इतने दिखते हैं? हमारे साथ अन्याय होता है तो कभी हम आंदोलन में वो जनसंख्या दिखा पाते हैं? जब हमारे साथ कोई भी प्रकार से अन्याय होता है, तो जब इलेक्शन होता है तब उसमें हम अपना वो दिखा पाते, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम नहीं दिखा पाते। तो हमें ये सोचना होगा कि अगर जो 20% वर्ग है वो अपनी जनसंख्या 20% होने के बाद भी दिखा सकता है, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? जय मूल निवासी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तारक ठाकुर साहब, कन्वीनर गुजरात ओबीसी अनामत वर्गीकरण समिति। बहुत जागरूक ओबीसी है हमारे पास और नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब। और अगले वक्ता के तौर पर मैं बुलाना चाहूंगा आयुष्मती कुमुदबेन राठौर, महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ गुजरात। धन्यवाद मंचस्थ महोदय श्री। आज यहाँ पधारे पाटन की धरती पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, वो हमारे महापुरुषों का कार्यक्रम है। आज हमारे बीच में हमारे महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हमारे महापुरुष का भी दिन था, कल और परसों हमारे महापुरुष का जन्म जयंती आता है, फिर हमारे एक दिन की जन्म जयंती उद्यम से हमारे कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारी लड़ाई क्या है? यहाँ आज का विषय है ईवीएम हटाओ देश बचाओ तथा ओबीसी ની જાતિ આધારિત જનગણના કરવાના વિરોધમાં તથા यूजीसी ના સમર્થનમાં महासम्मेलन। आज मैं यहाँ बोलने जा रही हूँ। ये मंचस्थ हमने
बाबा साहब आम्बेडकर के उन्होंने जो हक अधिकार दिया उनकी तरफ से और उनकी बदौलत से ये मंच हमें आज मिला है। हमारे नारी कहाँ की थी? कोई उन पर हंसता था, कोई कीचड़ उछालता था, नारी का कोई महत्व नहीं था। फिर आज नारी कलेक्टर बन रही है, डॉक्टर, IAS, वकील बन रही है। वो कौन का प्रताप है? हमारे महापुरुषों ने उनका त्याग बलिदान दिया, तब जाके ये आज हम उनके साथ में साथ मिलकर आज हमें वो सम्मान मिल रहा है। वो हमारी भाई सावित्रीबाई फुले जी का हक अधिकार से मिला है। हमारे घर से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं था। फिर सावित्रीबाई फुले ने अपनी पर कीचड़ उछाले, फिर भी ब्राह्मण के सामने वो एक मंच होकर अपनी लेडीज को ये मंच दिला कर रही, जो शिक्षा की देवी थी। इसीलिए हम आज उन पर गर्व और गौरव कर रहे हैं। आज यहाँ की महिलाएं क्यों नहीं है? आज महिलाएं क्यों नहीं आई है? जो पुरुष आए हैं तो फिर महिलाएं क्यों नहीं आई है? क्योंकि उनको पता ही नहीं आज हमारे महिलाओं का क्या बलिदान था। हमारी रमा माए थी, उन्होंने अपने 4 बच्चे इस धरती में समा दिए हैं। फिर जाके हमारे बच्चों को आज अधिकार मिला है। आज हम अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं। कहाँ से मिला है अधिकार? हमारी रमा माए ने उनका बलिदान त्याग दिया है। फिर भी हमारी लेडीज आज भूल रही है। आज का विषय है ईवीएम। मैं उन पर बात करना चाहूंगी। ईवीएम आज की मनुस्मृति ईवीएम है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक हमारी सत्ता आने वाली नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेंगे। मान्यवर बामन रेशम साथ के उनके कदम से कदम मिलाकर हम साथ देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सही तरह का दिशा बता देंगे। और हम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम भंडाफोड़, ईवीएम का सर्वनाश करेंगे। ईवीएम ही हमारी मनुस्मृति है। ईवीएम को हटाना हमारा कर्तव्य है। जय मूल्यवासी, जय भीम। खूब खूब धन्यवाद आयुष्मती कुमुदबेन राठोड मैडम। विशेषમાં પધારેલ માનનીય ગિરીશભાઈ મકવાણા સાહેબ, નિવૃત્ત નાયબ મામલતદાર કર્મભૂમિ રાજકોટને નમ્ર નિવેદન કરીશ। સાહેબ એક બહુજન કવિ પણ છે, તેમણે આપણા માનનીય ચેતનભાઈ સાંધીને આપણે સ્ટેજ પર સ્વાગત કરીએ છીએ। સાહેબ થોડા લેટ આવ્યા છે। ધન્યવાદ સાહેબ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर विराजमान माँ बहने मारा प्रणाम। पधारेल श्रोताजनों ने पण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ना नेजा हेठळ माननीय महानुभाव वामन मेश्राम साहेब ना अध्यक्ष में पाटण जिला स्तरीय कार्यक्रम निमित्ते जे महासभा आयोजन कर्યું છે તે બદલ તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન। અફસોસની વાત એ છે કે બાબા સાહેબના કાયદાના લીધે આપણે શિક્ષિત બન્યા અને નોકરીઓ મળી, સોસાયટીમાં સારા બંગલા બંધાવ્યા, લાડી ગાડી અને બંગલામાં ફરતા થઈ ગયા, પણ શિક્ષિત સમાજ, નોકરિયાત સમાજ આજે બાબા સાહેબની 135મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે 1 કલાક પણ સમય ફાળવી શક્યા નથી। એટલે અફસોસની વાત છે। તેના ઉપર મેં એક કાવ્ય બનાવ્યું છે જેનું હેડિંગ છે 58। 58 એ હોદ્દાના પાટિયા તમારા ઉતરી જવાના અને સામા મળશો તો કોઈ સલામ નથી કરવાના। આવશો ઓફિસે પટાવાળા પાણી નહીં પાવાના, જોગ બી કરેલા ને જરૂર લોકો જાકારો દેવાના। રોપ જમાવતા
રોગ જમાવતા રોગ વગરના થઈ જવાના, ખેંચાતો પાવરો પાછા ઢીલા ડબ થઈ ફરવાના, હુકમોના અધિકાર જી ઠાગા ઠૈયા કરી કાઢવાના, ભાગશે છેટી સનમસના જી પેન્શનમાં ગાળવાના, શીનવાશે સત્તા પાના હુકમના તમારા કપાવાના, સાહેબ પણ સાથ છોડશે ખેલ 58 ખતમ થવાના, જીપો વગરનું જીવન ડ્રાઈવરોના દાંત દેવાના, ગિરીશ બહુરૂપીના વાઘા 58 ઉતરી જવાના. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. અમે રેવન્યુમાં ભણતા હતા, કાયદો કે ટાઈમ લિમિટ, એટલે અહીં પણ ટાઈમ લિમિટનો કાયદો લગાવી દીધો છે. એટલે મારું વક્તવ્ય અત્રે પૂરું કરું છું. નમો બુદ્ધાય, જય ભીમ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય ગિરીશભાઈ મકવાણા સાહેબ, નિવૃત્ત નાયબ मामलतदार तथा बहुजन कवि। अगले वक्ता के तौर पर माननीय अशोक भाई राठौड़ साहब, राज्य अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी गुजरात ने હું નમ્ર નિવેદન કરીશ કે સમય મર્યાદામાં પોતાની વાત રજૂ કરે. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ સંચાલક મહોદય. પાટણની પવિત્ર ધરા ઉપર जननायक महानायक मूल निवासियों ने साची राह पर साचा संघर्ष पर और वर्तमान भारत के अंदर रोड पर उतरी और तमाम मूल निवासी बहुजनों हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता एवं नेतृत्व लिबरेशन लीडर मान्यवर वामन मेश्राम साहेब, आज मैंने गर्व અને ગૌરવ છે કે ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડની અંદર 39 વર્ષ નોકરી કર્યા પછી बहुजन मुक्ति पार्टीનો પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવે છે. આજે આ મંચ અને માન્યવર વામન મેશ્રામ સાહેબને હું રાષ્ટ્રીય સલામ કરું છું. સાથીઓ, ગઈકાલે 199મી જન્મ જયંતિ મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફુલે સાહેબની પૂરી થઈ વર્ષગાંઠ અને કાલે ગાંધીનગરની અંદર મૂળ નિવાસી મહાનાયક માન્યવર વામન મેશ્રામ સાહેબે એલાન કર્યું છે કે આખું વર્ષ 200મી જન્મ જયંતિ भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आ तमाम संगठनों, तमाम ऑफशूट विंगो 200મી जन्म जयंती मूल निवासी बहुजन महानायक मान्यवर ज्योतिराव फुले साहेब ने उजवશે. साथियों, વધારે ના કહેતા ચૂંટણીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. આ દેશની અંદર જે શાસક જાતિઓ છે એમને કેવા નાટક કર્યા છે, કેવા ષડયંત્રો કર્યા છે. જે ચૂંટણીઓ મહાનગરપાલિકાની અલગ થતી હતી, જે નગરપાલિકાની અલગ થતી હતી, જિલ્લા પંચાયતોની અલગ થતી હતી, નગરપાલિકાઓની અલગ, નગર પંચાયત તાલુકા પંચાયતોની અલગ થતી, એને બધું એક બાજુ બનાવી અને મહાપુરુષોની જ્યારે જન્મ જયંતિનો જે મહિનો છે એ મહિનામાં ચૂંટણી યોજી અને આ શાસક જાતિઓએ એક જબરજસ્ત મૂળ નિવાસી બહુજન સમાજને છેતરવાનું કામ કર્યું છે. લગભગ 12 વર્ષથી ઓબીસી ના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે. નરેન્દ્ર મોદી જાતિ આધારિત જનગણનાનું કામ કરતા નથી. ઇવન ओबीसी નું ખાનું પણ જનગણનામાં રાખ્યું નથી. સાથીઓ, દેશની અંદર પહેલી વખત બ્રાહ્મણ જવાહરલાલ નહેરુ જ્યારે આ દેશના પ્રધાનમંત્રી હતા ત્યારે તમામ ક્ષેત્રે બ્રાહ્મણોને ગવર્નરથી માંડી
અને 60% ટિકિટો આપી અને 47% આ દેશની અંદર બ્રાહ્મણોની ચૂંટણી લાવી આ દેશની અંદર લોકતંત્રને અને બ્રાહ્મણ તંત્ર સ્થાપિત કરી દીધું છે. એને પડકારવાનું કામ આવનાર દિવસોની અંદર અને આ ચૂંટણીઓની અંદર બહુજન મુક્તિ પાર્ટી બની ચડીને કરશે એ આશા અને વિશ્વાસ સાથે આ મંચ પરથી બોલવાનો મને આયોજકે મોકો આપ્યો એ બદલ ધન્યવાદ. જય મૂળનિવાસી, જય ભીમ. खूब खूब धन्यवाद माननीय अशोक भाई राठौड़ साहब. अगले वक्ता के तौर पर मुख्य अतिथि माननीय मघाराम हाथला साहब, एडॉप्शन इंचार्ज बामसेफ गुजरात महासचिव नवी दिल्ही ने हूँ नम्र निवेदन करीश कि स्टेज पर आવીને समय मर्यादा में પોતાની વાત રજૂ કરે. धन्यवाद. धन्यवाद मान्यवर. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पाटन जिला स्तरीय इस अधिवेशन में आज आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं. मैं कल महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती थी और आज से लेकर के लगातार ये जयंती समारोह चल रहा है. इन जयंतियों के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ. साथियों, आज के जो विषय रखे हुए हैं इन विषयों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पवन मेश्राम साहब यहाँ उपस्थित हैं, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये सब विषयों पे सारगर्भित वो बात रखेंगे. मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो भी यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, आप इन बातों को ध्यान से सुने. सुनने के बाद में आप लोग इस पे अमल करने के लिए समाज तक बातें पहुँचाएं. आपके माध्यम से ही समाज में ये बातें जाएगी और जो बात समाज को आप पहुंचाना चाहते हैं, संगठन की एक मकसद है कि समाज के अंदर ये जानकारी आ जाए. तो आप हमारे लिए सोशल टावर है, टावर के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जैसे फोन हमारा लगता है और जहाँ टावर नहीं होता वहां नहीं लगता है, तो आपको सोशल टावर के रूप में भूमिका निभानी होगी. आप अपने गली मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने जाति समाज में, अपने कुटुंब परिवार में जाएं और ये हमारी बात जो संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से ईमानदारी से आगे पहुंचाएं. ये आपकी हमारी ईमानदारी ही समाज में परिवर्तन लाएगी. मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो 50 साल में ये कार्यक्रम चला रहे हैं, मेश्राम साहब 50 साल से, ये आपको समाज को ये जो मानसिक गुलामी से भी मुक्त कराएगा और देश की लोकतांत्रिक मुख्य धारा में लाने के लिए भी यही तरीका है. आप ऐसा ही करेंगे. मैं मेरा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं. आपने हमें बुलाया और समय दिया, इसके लिए धन्यवाद. जय मूलनिवासी. धन्यवाद माननीय मघाराम हाथला साहब, एडॉप्शन इंचार्ज बामसेफ गुजरात महासचिव बामसेफ नवी दिल्ली फ्रॉम राजस्थान. अगले वक्ता के तौर पर मैं आयुष्मती किरणबेन सोलंकी, बहुजन महिला प्रकोष्ठ गुजरात को निवेदन करूंगा कि समय मर्यादा में आके अपनी बात रखे. धन्यवाद. धन्यवाद. फिर कहेंगे हाँ हाँ हाँ. धन्यवाद संचालक महोदय. विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकરના ગુરુ જ્યોતિબા ફૂલેનું કાલે 11મી એપ્રિલ 199ની જન્મ જયંતિ આપણે બધાએ ઉજવી. આજે 200મી વાર્ષિક જયંતિ આપણા પાટણની ધરતી ઉપર, ઐતિહાસિક નગરી ઉપર શરૂઆત થઈ રહી છે, એનું મને ગૌરવ છે. બીજું કે 135મી જન્મ જયંતિ બાબા સાહેબ આંબેડકરની મહાનુભાવો તેમજ મહાનાયિકાઓને હું સર્વપ્રથમ નમન કરું છું.
તેમજ આજની અધ્યક્ષતા કરનાર માનનીય જનનાયક માનનીય વામન મેશ્રામ સાહેબનું આ પાટણની ધરતી પર સ્વાગત કરું છું. સાથીઓ, 13 નવેમ્બર 1949માં સંવિધાન સભામાં સંવિધાન રજૂ કરાયું અને આ એક યુગાંતરકારી ઘટના હતી અને એના લીધે જે મહિલાઓને, જે શોષિત મહિલાઓ હતી એને ભારતીય નાગરિકનો એક માન સન્માન મળ્યું અને એના લીધે આર્ટિકલ 13 ના મુજબ જે શોષિત કરેલું જે હતી વ્યવસ્થા એ 0 ઘોષિત કરવામાં આવ્યું અને એના લીધે શિક્ષણ આપતી, જે શિક્ષણથી વંચિત હતી એ મહિલાઓ શિક્ષણ આપતી અને લેતી થઈ ગઈ. જે મહિલાઓ શસ્ત્ર રાખવાનો અધિકાર નહોતો એ મહિલાઓ આજે શસ્ત્ર રાખતી થઈ ગઈ. આજે પીઆઈ, ડીએસપી, આઈપીએસ બની ગઈ. જે મહિલાઓને સંપત્તિ રાખવાનો અધિકાર નહોતો એ મહિલાઓ આજે રોજગાર અને નોકરી કરતી થઈ ગઈ. જે મહિલાઓને રાજા બનવાનો અધિકાર નહોતો એ મહિલા આજે રાજા બનવા અને રાજા બનાવનાર બની ગઈ છે. તો અને એના લીધે આજે મહિલા સંવિધાનના લીધે એમપી અને એલએમ બની ગઈ છે. મારો વધારે સમય નહીં આપું, સાહેબને આપું છું. જય મૂલ્ય. खूब खूब धन्यवाद आयुष मंत्री किरणबेन सोलंकी. नेक्स्ट वक्ता के तौर पर माननीय डॉक्टर जेजी परमार साहेब, इंडिकल मेडिकल प्रोफेशन एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने હું નમ્ર નિવેદન કરીશ કે સમય મર્યાદામાં પોતાની વાત રજૂ કરે. ધન્યવાદ. जय मूल निवासी साथियों, वीर मेघमायानी शहादतनी आ भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरनी 135મી जन्म जयंती निमित्ते આપણે बामसेब भारत मुक्ति मोर्चाना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहेबनी આગેવાનીમાં આજે મળ્યા છીએ. સૌનું સ્વાગત છે. આજે જે 3 વિષયો પર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વિષયો છે. સમય આપણી પાસે ખૂબ ઓછો છે. તો ત્રીજો વિષય છે કે ફૂલ પેમેન્ટમાં કાયમી નોકરી ના આપી કરાર આધારિત ભરતી કરી બેરોજગારોને, યુવાધનને ખતમ કરવાનું ષડયંત્ર છે. તે આપણે છેલ્લા 25 વર્ષથી આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ અને પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતી જાય છે. બીજો વિષય છે ઓબીસીની જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી ના કરી અને ઓબીસીને કાયમ માટે ગુલામ બનાવી રાખવાનું શાસક જાતિઓનું ષડયંત્ર છે. તારકભાઈએ એના સંદર્ભમાં વાત કરી. આ બે આપણી સમસ્યાઓ છે. એવી અનેક સમસ્યાઓ છે આપણી પાસે. અને અત્યાચાર, બેકારી, ભૂખમરો, ગરીબી, ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે. હવે એ સમસ્યાઓનું કારણ છે કે શાસક જાતિઓ શાસક રહે છે અને આપણા મહાપુરુષોએ જે આંદોલન ચલાવ્યું, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેની જન્મજયંતિ ગઈકાલે હતી. માન્યવર કાંશીરામ સાહેબ અને અનેક મહાપુરુષોએ અને માન્યવર વામન મેશ્રામ સાહેબ જે છેલ્લા 50 વર્ષથી આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે. આપણને આઝાદ કરવાનું આંદોલન છે, આપણી ગુલામી દૂર કરવાનું આંદોલન છે. તો આપણી ગુલામીનું કારણ શું છે? ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન આપણી ગુલામીનું કારણ છે. કારણ કે શાસક જાતિઓ ષડયંત્ર કરી અને બ્રાહ્મણી વ્યવસ્થાને કાયમ રાખવા માટે જૂઠી બહુમતી હાંસલ કરી અને આપણને ગુલામ રાખે છે. અને આ બધા જે કાયદા છે આપણા વિરોધમાં બનાવીને કાર્યક્રમો બનાવે છે. તો આપણા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે
ભારત મુક્તિ મોરચાના માધ્યમથી, બહુજન ક્રાંતિ મોરચાના માધ્યમથી જે આંદોલન માન્ય વામન મેશ્રામ સાહેબ જે ચલાવી રહ્યા છે, ઈવીએમ હટાવો દેશ બચાવો, એમાં આપણે સામેલ થઈએ, એને આપણે સમજીએ અને આપણા મિત્રો, સગા સંબંધીઓ બધાને જોડીએ અને એનું જન આંદોલન કરી અને આપણે જો ઈવીએમ હટાવી અને મતપત્ર લાવીશું તો જ આપણે શાસક બની શકીશું અને આપણી સમસ્યાઓનું સમાધાન આપણે જાતે કરી શકીશું. ઘણી બધી વાતો છે, પણ હું મારો સમય આપણા અધ્યક્ષ માન્યવર વામન મેશ્રામ સાહેબને આપું છું. મને મહેમાન તરીકે બોલાવી અને અહીંયા આપની સમક્ષ આ વાત કરવાની તક આપી એ બદલ સંગઠનનો હું આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જય મલ્યવાસી. डॉक्टर साहब धन्यवाद। और सभी लोग यहाँ वामन मेश्राम साहब को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। मेश्राम साहब लास्ट टाइम कुछ कारणों से नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार ऐतिहासिक पाटन की धरा पर पधार चुके हैं। वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा तथा राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। वेलकम सर, स्वागत है आपका। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज 135वीं जयंती के मौके पर, बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पर पाटन जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इसमें मुख्य विषय ईवीएम मशीन और ओबीसी की जाति आधारित गिनती के संबंध में है। ये दोनों विषयों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, भारत में जो चुनाव हो रहा है वो ईवीएम मशीन के माध्यम से हो रहा है। जब सबसे पहले ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव होना शुरू हुआ तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न नहीं हो सकता, ऐसा निर्णय दिया। ये निर्णय 2013 में दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो उसमें ये कारण दिया गया कि जो वोटर वोट डालता है वो वोट डालने के बाद उसका वोट किस पार्टी और किस कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया है
ये दिखाई नहीं देता है। इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट दिया था कि इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर एंड निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी के शब्द यूज किए थे, मैंने उसका ट्रांसलेशन आपको बताया ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसके बारे में भारत का जो मीडिया है उसने सारे देश भर के लोगों को जो बताना चाहिए था, जो समझाना चाहिए था, जो जागृति करनी चाहिए थी, वो करने का काम नहीं किया। इसके बाद में चुनाव में ईवीएम मशीन को बरकरार रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट दिया जाता है वो दिखने की व्यवस्था की गई। परंतु केवल दिखने का ही मामला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गुप्त रूप से अलग अलग चुनाव में क्या क्या व्यवस्था की गई है, ये देखने की वोटर के पास कोई समझ नहीं है। मशीन के अंदर मशीन कैसे काम करती है, इलेक्शन कमीशन के लोग जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करने के अलावा कोई आधार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया और हम लोगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं कहा जा सकता। साथियों, ईवीएम मशीन के द्वारा या कोई भी मशीन के द्वारा, किसी भी प्रकार के मशीन के द्वारा मशीन के अंदर हर लेवल पर अलग अलग टेक्नोलॉजी की जा सकती है। दिखाने का प्रॉब्लम था तो दिखाने का प्रॉब्लम हल कर दिया गया। उसके बाद ईवीएम मशीन के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट किया गया या क्या क्या रखा गया, क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी वोटर को नहीं है। बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत के पास टेक्नोलॉजी में जितना डेवलपमेंट है, जितना एडवांसमेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट अमेरिका के पास है।
यूरोप के पास है, जर्मन के पास है। उन लोगों ने ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर शुरू कर दिया। भारत ये दावा नहीं कर सकता कि भारत के पास दुनिया से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये दावा भारत नहीं कर सकता। भारत से कई ज्यादा टेक्नोलॉजी में अमेरिका के पास है, जापान के पास है, जर्मनी के पास है। वो सारे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी को उन्होंने ईवीएम मशीन को बंद कर दिया और बैलेट पेपर से ही चुनाव दोबारा शुरू कर दिया। भारत सरकार को क्या ऐतराज है? ये सवाल। भारत सरकार को क्या ऐतराज है? भारत सरकार है किसकी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपको मालूम नहीं होगा किसने की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की। अंग्रेज और ब्राह्मण मिलकर कांग्रेस पार्टी चलाते थे। अंग्रेज चले गए, ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किया और इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। तो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा शुरू की गई पार्टी है। आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। इसकी स्थापना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। इस हिसाब से ये ब्राह्मणों की पार्टी है। परंतु आज के तारीख में नरेंद्र मोदी एक ओबीसी का आदमी को ब्राह्मणों की पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। देश भर में ओबीसी के लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती की मांग कर रहे हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी ने गिनती करने का काम नहीं किया। 12 साल हो गए। 3 साल में शायद आरएसएस के लोग उनको बोल सकते हैं कि अब आपके 15 साल हो गए हैं, तो किसी दूसरे को बनाया जाए। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। मोदी जी ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं किया। तो ब्राह्मणों की पार्टी है आरएसएस, बीजेपी, तो उनको मुझे ही और प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। मतलब ब्राह्मणों का काम अगर मान लो मोदी जी कर रहे हैं, तो आरएसएस और भाजपा के लोग मोदी जी को ही और चौथी टर्म दे सकते हैं
क्योंकि उनके हितों के विरोध में मोदी जी कोई काम करते हुए तो दिखते नहीं है। कि जो जिसे इस देश में बहुजन कहा जाता है वो कौन लोग हैं? एससी, एसटी और ओबीसी, इनकी संख्या देश में 74.5% है। एससी एसटी की 22.5% है और ओबीसी की 52% है। तो ये तीनों को मिलाकर ये संख्या 74.5% होती है। अगर माइनॉरिटी जो 15% है अगर उसको मिला दो तो ये और ज्यादा होती है, ये 85 से भी ज्यादा होती है। इसलिए इतनी भारी संख्या होने के बावजूद भी इन लोगों का देश के संसद में और शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व कितना है? राजाशाही हुआ करती थी पहले, तो एक राजा हुआ करता था और बाकी सभी प्रजा हुआ करते थे। लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। एक पिलर है विधायिका, जहां इलेक्टेड एमएलए और एमपी चुनकर जाते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में कानून पास करते हैं और सरकार चलाते हैं। दूसरा अंग है कार्यपालिका। वो कार्यपालिका है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। ये जो आईएएस अधिकारी वर्ग है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो जिले के जिलाधिकारी और प्रमुख अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। इसमें आज के तारीख में 80% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं, त्रैवर्णिक लोग हैं, और 20% इनकी संख्या 85-90% है। उनकी प्रशासन में संख्या 20% है। और ये 20% संख्या में भी चपरासी ज्यादा है। 20% जो संख्या है इसमें चपरासी ज्यादा है, जो सरकार के आंकड़े हो बोल रहा हूं। और दूसरे नंबर पर क्लास 3 पोस्ट के लोग ज्यादा है। चपरासी तो चतुर्थ श्रेणी होते हैं और जो बाबू है वो क्लास 3 होते हैं। तो ऐसे हमारे लोग हैं। और जो वरिष्ठ अधिकारी है, मैंने कुछ अधिकारियों से बात किया तो वो कहते हैं कि सरकार या तो कांग्रेस की होती है या तो बीजेपी की होती है, और इन लोगों के आदेशों और निर्देशों पर हमको काम करना पड़ता है, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो हमारे लोग हैं, ये लोकतंत्र का दूसरा पिलर है। इसमें भी हमारे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। तीसरा है जुडिशियरी। इस जुडिशियरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पार्लियामेंट और विधानसभा के द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहां पर जहां पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, वहां हमारे लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है। 2-3% है, ज्यादा नहीं।
और जो 2-3% लोग हैं उनकी समस्या क्या होती है? मान लो कि 3 बेंच का जज है, तो उसमें हमारा SC ST OBC का एक जज होता है, 2 जज वही होते हैं। 3 का बेंच है तो एक आदमी हमारा होता है, तो वो वहां कुछ नहीं कर पाता है। ये जो सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारे लोगों को पता है नहीं, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चौथा पिलर है मीडिया, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, प्रिंट मीडिया में अखबार आता है, ट्रेडिशनल मीडिया में मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज एंड राजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा कुचा महाराज, मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम नहीं ले सकते, इतना बहुत सारा। तो ये मीडिया चलाने वाले लोग हैं। तो ये लोग तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हमारी बात अखबार में क्यों लिखेंगे, अखबार में क्यों बयान करेंगे? तो जो लोकतंत्र देश में स्थापित किया गया 4 पिलर सिस्टम, उसमें हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर हमारे नियंत्रण में क्या है, हमारे हिस्से में क्या है? तो जब चुनाव होता है तो लाइन लगाकर वोट डालने के अलावा कुछ नहीं। हम लोगों का काम है लाइन लगाओ और लाइन लगाकर वोट डालो। कुछ लोग बीजेपी के समर्थक हो जाते हैं और जो बीजेपी के समर्थक नहीं होते हैं वो कांग्रेस के समर्थक हो जाते हैं। तो कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। तो एक राजाराम है, एक सीताराम। राजाराम जाता है तो सीताराम आता है, सीताराम जाता है तो राजाराम आता है। तो राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, ऐसा भजन गाने के अलावा हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है। आप लोगों को मालूम हो जाए कि देश में हमारे नियंत्रण में है क्या, इसलिए ये बात आपको बता रहा। इसमें बदलाव होना चाहिए, इसके लिए हमने संगठन बनाया, वामसेप संगठन बनाया। मैं 19 साल की उम्र का था, अभी लगभग मेरी 70 साल की उम्र है, तो 51 ईयर हो गए। तो 51 ईयर में जो 36 स्टेट है उसमें 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। यानी गुजरात के जामनगर से लेकर नागालैंड के कोहिमा तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नीचे केरला में, ये सारे राज्यों में हमारा संगठन है। इधर ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारा संगठन है। इतना बड़ा संगठन हमारे समाज में, पढ़े लिखे लोगों का संगठन किसी के पास नहीं है। तो ये इतना बड़ा संगठन हमने क्यों बनाया? क्योंकि देश में आजादी मिली और लोकतंत्र आ गया, मगर हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वो बदलाव अभी तक नहीं हुआ। कुछ SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन में चपरासी और बाबू की नौकरी मिली। ये मानना पड़ेगा, ये तो मैं मानता हूं, कोई माने ना माने कि चपरासियों की और बाबू की नौकरी हमारे लोगों को मिली है।
जो आईएएस अधिकारी होता है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा बाबू होता है। बड़ा बाबू समझते हो? जो बाबू होता है वो क्या करता है? वो मंत्री के पास फाइल लेकर जाता है। और जो आईएएस अधिकारी होता है वो क्या करता है? वो भी मंत्री के पास फाइल लेकर जाता है। तो दोनों बाबू हैं। फर्क क्या है? एक छोटा बाबू है, एक बड़ा बाबू। जो छोटा बाबू है एससी एसटी ओबीसी का, वो आईएएस के पास जाता है, और आईएएस नाम का जो बड़ा बाबू है वो मंत्री के पास जाता है। बस इतना फर्क है। और इस वजह से ये जो कुछ कर्मचारी हैं उनसे हमारे महापुरुषों की उम्मीदें पूरी हो जाए, ऐसा कहना, ऐसा सोचना गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है। जब तक शासन करती जमात नहीं बनेंगे तो हमारी गिनती भी नहीं होगी। शासन करता तो मोदी भी हो गया है, वो तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के ऊपर तो कार्यपालिका में कोई पद नहीं है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के बाहर है, वो ऊपर है, मगर कार्यपालिका में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री ओबीसी का आदमी है, और ओबीसी का आदमी होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती करने का भी अधिकार उसके पास नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जो गुजरात के लोग मोदी को देश का प्रधानमंत्री मानकर खुश होते होंगे, उनको मेरी बात सुनने से थोड़ा दुख होगा। मैं क्या कर सकता हूं? आप लोगों को दुखी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको जगाने के लिए कह रहा हूं। जिससे आप खुश हो रहे हैं उसमें खुश होने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का भी फैसला नहीं कर पा रहा है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का भी फैसला नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आरएसएस के पास फैसले करने का अधिकार है। जितने फैसले आरएसएस के लोग लेने के लिए मोदी जी को अलाउ करते हैं, उतने ही फैसले मोदी जी लेते हैं। उससे ज्यादा फैसले मोदी जी लेते नहीं हैं। क्यों? मोदी जी की ख्वाहिश है कि और एक बार प्रधानमंत्री बना जाए। क्यों? फिर वो बनने के बाद कहेंगे, देखो मैंने नेहरू जी का भी समय से ज्यादा प्रधानमंत्री रहा। नेहरू जी का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया। तो मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं, काम करने के पीछे नहीं है, और रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। और जिस समाज को वो बिलोंग करते हैं उस समाज की गिनती भी करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मैं बहुत दुखी होकर ये बात आप लोगों को कह रहा हूं कि एक ओबीसी का आदमी देश में प्रधानमंत्री बना। दूसरी बार हुआ कर्नाटका के देवेगौड़ा
वो भी ओबीसी के थे, और मोदी जी ये दूसरे ओबीसी के प्रधानमंत्री है। देवेगौड़ा ने ओबीसी की गिनती का फैसला किया था, उस पर अमल करने के पहले ही उनको हटा दिया। फैसला किया था, अमल करने के पहले हटा दिया। मोदी जी को ये इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं। मोदी जी को मालूम है कि देवेगौड़ा को हटा दिया गया था गिनती की वजह से, और मोदी जी और एक टर्म चाहते हैं, तो वो ये निर्णय करने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी जी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मोदी जी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। कितने लोगों को समझ में आता है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, नॉट रियल प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनेटेड बाय आरएसएस। ध्यान रखो। तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। मोदी जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। जब आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, तो मोदी जी को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया वो क्या सोचते हैं। तो वो तो सोचते हैं कि ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मोदी जी ओबीसी की गिनती करने वाले नहीं हैं। तो जब मोदी जी ओबीसी की गिनती करने वाले नहीं हैं, तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में अधिकार देने का मामला तो हवा में उड़ गया। गिनती करने के लिए तैयार नहीं है, तो संख्या के अनुपात में अधिकार देने का मामला अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो वो लोग जिसे आज ओबीसी कहा जाता है वो है कौन? क्या आप लोगों को पता है कि ओबीसी कौन है? मैं आपको समझाने के लिए बताता। ओबीसी ब्राह्मण है? नहीं है। ओबीसी क्षत्रिय है? नहीं है। ओबीसी वैश्य है? नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण में 3 वर्ण के नहीं है, तो अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। बहुत सारे पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट को शूद्र कहते हैं, वो गधे लोग हैं। पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट को शूद्र कहते हैं, वो गधे लोग हैं। शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, आउटकास्ट। जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आउटकास्ट कहा। आउटकास्ट अंग्रेजी शब्द है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज किया था, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है वर्ण बाह्य लोग, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। तो वर्ण व्यवस्था के बाहर कौन है? वर्ण व्यवस्था के बाहर अछूत लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के बाहर आदिवासी लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के बाद नॉमिनेट ट्राइब के लोग हैं। तो इसका मतलब है ये लोग जो है ये वर्ण बाह्य लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। इसलिए शेड्यूल कास्ट शूद्र लोग नहीं है, क्योंकि शूद्र तो वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है। तो इसका मतलब है ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई उसमें चौथे नंबर पर ओबीसी को रखा।
कितने ओबीसी को पता है? पहला ओबीसी जिसको ये जानकारी हुई उसका नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले। ये माली जाति का ये पहला आदमी है जिसको ये मालूम हुआ। तो ओबीसी की जातियों की संख्या है 3743 जातियां। ओबीसी की इतनी जातियां है और इस हिसाब से संख्या भी ज्यादा है, मगर संख्या के अनुपात में उनको अधिकार नहीं है। और इसका बड़ा कारण, बहुत सारे कारणों में एक बड़ा कारण, ब्राह्मण इनको हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण इनको हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। राजकोट के दयानंद सरस्वती कहा करते थे, हिंदू मुसलमानों की दीदी गाली है। दयानंद सरस्वती आपके गुजरात के थे, राजकोट के, टंकारा के। वो कहते थे कि हिंदू मुसलमानों की दीदी गाली है। तो जब मैंने ये कहना शुरू कर दिया तो आरएसएस के लोगों ने अपने धर्म का नाम दूसरा रखा, नया नाम रखा मेरी वजह से। आप लोगों को पता नहीं है, ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनको अपने धर्म का नाम बदलने के लिए भी मैंने मजबूर कर दिया। उन्होंने अब नया नाम रखा अपने धर्म का, सनातन। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? आजकल ब्राह्मण लोग अपने धर्म का नाम सनातन कह रहे हैं। सनातन शब्द भी संस्कृत का नहीं है। एस धम्मो सनातनो पाली भाषा का प्रवचन बुद्ध का बता रहा हूं। उसका अर्थ है एस धम्मो सनातनो, यह सनातन धर्म है। बुद्धिज्म के बारे में बुद्ध ने कहा यह सनातन है, इस धर्म का नाम सनातन है। ऐसा बुद्ध ने कहा, बुद्ध का पाली भाषा में प्रवचन है। मैंने लिखित रूप से ब्राह्मणों को कहा, अरे ब्राह्मणों, तुम अपने को पंडित कहते हो, विद्वान कहते हो, गधे कैसे हो रहे हो, गधे कैसे बन रहे हो? अरे सनातन तो बुद्ध के धर्म का एक नाम है। लोगों ने उसका नाम बौद्ध धर्म रखा, बुद्ध ने सनातन कहा। एस धम्मो सनातनो। तो ब्राह्मणों के धर्म का कोई भी नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस देश के रहने वाले ही नहीं है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, भारतीय नहीं है। अगर मैंने पिछले 10 साल में, 15 साल में ये अभियान नहीं चलाया होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। मोदी जी, मेरी वजह से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वहां रहकर कुछ करो, कर नहीं रहे हो। हमारे आंदोलन के बदौलत आपको मौका मिला, अब कुछ करो। जब मौका मिला तो करो, मौका नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, मुश्किल होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को जो सत्य है, जो तथ्य है, ये बता रहा हूं और यही सारे देश भर में बता रहा हूं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहां मैंने ये बताया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी मैंने बताया।
जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर जगह मैंने ये बताया और पुलिस का परमिशन लेकर के कार्यक्रम करता हूं, हर जगह करता हूं, सारे देश भर में करता हूं। तो इसलिए हम लोग इस देश में 85% है, तो संख्या के अनुपात में 85% है। अब इकट्ठा नहीं हुए हैं क्योंकि हिंदू के नाम पर ब्राह्मण गधा बनाने में कामयाब हुए हैं। हमेशा के लिए गधा नहीं बनाया जा सकता, गधा हमेशा के लिए नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा जागरण चल रहा है, आने वाले समय में तमाम लोग जागृत हो जाएंगे। जितना जागृत हो गए हैं उससे ही उन लोगों को बहुत खतरा पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, मैंने नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, और जब मोर्चा लेकर गया तो आरएसएस में चर्चा शुरू हुई कि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर रखना खतरनाक है, यहां से हेडक्वार्टर मूव करना होगा, तो कहां ले जाना चाहिए। तो चर्चा शुरू हुई, अयोध्या में ले जाओ। तो मैंने अपना वीडियो बनाया और कहा, आरएसएस के लोगों को कहा, अरे अयोध्या में भी मेरे लोग हैं, अयोध्या यूपी में है और सारे यूपी के जिलों में है, और अयोध्या एक जिला है वहां भी है, वहां जाओगे फिर मैं वहां कार्यक्रम लगाऊंगा। इसलिए साथियों, हम लोग इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आजादी 15 अगस्त को मिली जो अंग्रेजों के गुलामी से ब्राह्मणों की आजादी थी। ये सभी लोगों की आजादी नहीं थी। संविधान ने हम लोगों को आजादी दिलाई, मगर संविधान पूरी तरह से अमल में नहीं आ रहा है। तो हमें अपना आंदोलन देशव्यापी बनाना पड़ेगा और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। जन आंदोलन गांधी जी ने किया था तो अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए थे। हम लोग भी जन आंदोलन चलाएंगे तो हमारा लक्ष्य ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना होगा। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि ब्राह्मणों को अंग्रेजों की तरह भगा दिया जाए, नहीं। हम लोग ब्राह्मणों के गुलामी से, अरे बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, दे दो, दे दो, दे दो, चिट्ठी दे दो, उसके हाथ की चिट्ठी ले लो। उसको भी तो कुछ कहने का अधिकार है, वो तो सीनियर सिटीजन है भाई। तुम ऐसा मत समझो कि उसको कुछ नहीं है, उसको भी हम लोग सीनियर सिटीजन मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, और ये आजादी का आंदोलन समय होगा तो निश्चित रूप से हम लोग देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। इससे हम लोग आजादी हासिल करने में कामयाब होंगे। आप लोग साथ सहयोग और समर्थन करेंगे तो ये काम निश्चित होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।